जॉइंट जो घुटने के हैं वो ऐसे मतलब ढीले पड़ गए कि मुझे एटलीस्ट 6 मंथ तक दवा करानी पड़ी थी। लेकिन ये रियलाइजेशन एक्चुअली होता नहीं है। ये रियलाइजेशन आपको जो है उस समय होता है जब आपको लगता है कि नहीं, मैं इस एज पे जब मैं फोर्सफुली अपने बॉडी को किसी काम को करवाती हूँ या मैं कुछ करती हूँ अपने वर्क बॉडी के साथ, तो जब उसका रेपरकशंस आते हैं और वो हमेशा बुरा ही होता है। Thanks for clicking on my video and thanks for stopping by. Today we are going to discuss something very important, and my topic is really going to be very important. So for the longest time, first, the law of universe has been around. People are obsessed with looking great, beautiful and younger. And being a woman, it's our right to look beautiful. We really want to look beautiful, at any age. Look, aging, it is a part of life, but looking good and feeling good, it is also a part of life. And we really don't want to look ourselves wrinkly face when we see ourselves in the mirror. We really want to look ourselves fresh, beautiful. We don't want to look tired, wrinkly face with sagging skin. We really want to look beautiful. We do a lot of makeup, workout, and maybe even a little nip and tuck here and there, just to look beautiful, just to get into, just to fit into the picture of looking beautiful is acceptable. It's just a kind of feeling good factor is also there, because when you look good, when you look beautiful, when you look young, you feel energetic and you feel good. You feel that you can do everything. Whatever comes in your way, you can tackle with those things. As we know that society has put a lot of pressure on women to look beautiful, and it seems that it's a never-ending race, to defy the aging process. And it's like, feeling great and just fit into the frame of the beautiness set by the society. And that is why we always really want to look beautiful, even if our age is piling up. We don't care for it. We really want to look beautiful. अब देखिए, एक हद तक तो सही है कि हमारे ऊपर सोसाइटी का एक प्रेशर रहता है हमेशा सुंदर दिखने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, यंग दिखने के लिए। तो अगर हम उस नॉर्म्स में फिट नहीं बैठते तो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस जो है वो रहता है हमारे बीच में, हमारे मन में, और फिर हम बढ़ती उम्र की परवाह नहीं करते। हमें फिर एक ही चीज सताती है कि कैसे हम अपने आप को कम उम्र दिखाएं, और ये जब एक ऑब्सेशन तक पहुंच जाती है, ये जब एक सनक के हद तक पार करने लगती है, तब प्रॉब्लम आती है। So before we get into this topic totally entirely, I really want to get into my own story. So I would like to tell you the story which usually I come with. I'm talking about a lady. Well, I'm not going to take her name. I'm not going to tell her name. Let it be secret. And as I meet her every day, so this lady actually sprightly 55 years of age, but she had a strong desire. Actually, she has a strong desire to turn the clock back, and she wants to look 35. So she started her quest by hitting the gym, spending hours on treadmill, sweating away a lot, and body lifting, and even she joined a kind of training yoga classes too. लेकिन जो मजे की बात ये थी कि वो अपने इस जो भी एक्सरसाइजेस वगैरह करती थी वो हम लोग को बताती नहीं थी। वो जो है, जब भी हम पूछते थे तो कहती थी नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बॉडी में कुछ चेंजेस तो आता है कि इफ यू आर फ्रिक्वेंटली वेरी ardently you are working on your body, the changes,
it's very clear, you can see it's manifested, very clearly you can see the changes which comes. तो जब भी उसको हम देखते थे तो हम लोग कहते थे कि यार तुम कुछ तो कर रही हो ऐसा, तो वो कहती थी नहीं नहीं आई एम नॉट डूइंग नथिंग यार, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आई डोंट गेट टाइम टू स्पेंड ऑन योगा क्लासेस एंड डूइंग एक्सरसाइज एंड हिटिंग ऑन जिम्स, मैं तो कुछ भी नहीं करती। लेकिन मैंने उसको एक बार जो है योगा क्लास से निकलते भी देखा था। इट्स ऑल राइट, पीपल हाइड देयर थिंग्स, दे डोंट वांट टू come out with their the exercises or the efforts which they are putting on to become beautiful and all. So this hard work, it started taking toll on our joints and muscles, क्योंकि एक एज के बाद जब आप इस तरह की हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर अपने आप को यंग दिखाने के लिए आप जब इस तरह की चीजें करते हैं तो फिर आपके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। इवन आई वांट टू टेल माय ओन एक्सपीरियंस कि मैंने भी ऐसा ही किया था कि किसी ने मुझे बताया था कि वेट लूज करने के लिए आपको स्किपिंग करनी पड़ेगी। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट, मे बी 100 बार 150 बार मैं क्या करती थी स्किपिंग, और उसके बाद क्या हुआ, मेरे जॉइंट जो घुटने के हैं वो ऐसे मतलब ढीले पड़ गए कि मुझे एटलीस्ट 6 मंथ तक दवा करानी पड़ी थी। लेकिन ये रियलाइजेशन एक्चुअली होता नहीं है। ये रियलाइजेशन आपको जो है उस समय होता है जब आपको लगता है कि नहीं मैं इस एज पे जब मैं फोर्सफुली अपने बॉडी को किसी काम को करवाती हूँ या मैं कुछ करती हूँ अपने वर्क बॉडी के साथ, तो जब उसका रेपरकशंस आते हैं और वो हमेशा बुरा ही होता है। देखिए ये जो खूबसूरत या यंग दिखने वाला ये जो एक विचार है वो बहुत कॉमन है जो एजेड विमेंस के लिए, जो 50 या 55 तक पहुंच रही हैं या 45 क्रॉस कर चुकी है, उनके लिए बहुत बहुत ही कॉमन है। और सबसे जो हैरान कर देने वाली बात है कि जब वो इस तरह की चीजें करती हैं तो मे बी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल हम उस चीज को फेस करने से डरते हैं। हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वाई वी आर डूइंग दिस थिंग। मुझे अब भी पता है, अब भी मुझे नहीं लगता कि क्या, क्योंकि मैं खुद महसूस करती हूँ कि अभी तक जो है मैं फ्लैट चप्पल नहीं पहन पाती, क्योंकि बचपन से ही मुझे एक कॉम्प्लेक्सिटीज थी और वो ये थी कि मैं लंबी दिखना चाहती थी। तो अब भी जो है मेरे प्रॉब्लम्स, पैर में प्रॉब्लम होने के बावजूद मैं साड़ी के साथ पहन ही नहीं पाती। जो स्लीपर्स है या फिर जो फ्लैट चप्पल्स है वो नहीं पहन पाती। मैं हमेशा जो है हील वाले चप्पल पहनती हूँ। लेकिन रियली इफ आई जस्ट रियली वांट टू गेट इनटू द depth of it, I really won't tell you what is the reason behind it. Maybe I am not able to put forth my ideas in front of you. Maybe I'm afraid of telling you the truth that even I want me to look beautiful and good. So ये बहुत कॉमन सी चीज है कि हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है और उसके लिए वो कुछ करे, और उसके लिए अगर वो कुछ करता है इट्स ओके, ये एक लिमिट तक ठीक है। लेकिन जब आप एक लिमिट क्रॉस करते हो और जब आप अपने सेल्यूलर बॉडी के साथ ज्यादती करते हो, जब आप उस बॉडी को जो है परेशान करते हो, तो आपकी जो सेल्यूलर एज है, जो वास्तविक एज है, वो तो अब कहीं ना कहीं जो है वो अपना सही उम्र के हिसाब से चलती है। और आउटर अपीयरेंस को, आउटर लुक को हम ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, और इस होड़ में हम ये नहीं समझ पाते कि हम अपने आप को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। महिलाएं 50 की उम्र में भी 20-25 की क्यों दिखना चाहती हैं? लेकिन मेरा जहां तक ये अनुमान है कि 50 की उम्र में अगर हम 20-25 दिखने की कोशिश करेंगे तो ये सही नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि जो उम्र 20, 25, 30 की होती है उसमें उनके कार्य करने की शैली, उनकी कार्य क्षमता, उसकी एनर्जी, उनका डाइट प्लान, उनकी एक्टिविटी वो अलग होती है। क्या हम 50, 55, 60 की उम्र में
उनके इस चीज को फॉलो करें तो क्या हम उनके बराबर ही हो सकते हैं? कभी नहीं। ये हमारी एक सोच है कि हम कैसे उनके बराबर दिखे। अगर हम अपनी इस सोच को इस तरह देखें कि हम वो जो कार्य कर सकते हैं, वो जिस प्रकार से उनकी दिनचर्या है, उनकी जो एक्टिविटी है, हम उसका कुछ हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम उनको फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक 50-55 जो उम्र होती है, उस उम्र में पहुंचने पर इंसान की शरीर की जो क्षमता होती है, यानी कार्य करने की क्षमता, मतलब वो थोड़ी कम हो जाती है। So coming to my story again, so this lady, she decided to overhaul her diet, and out went the cookies and ice cream, and in came the soup and salads, and she would count every calories of her, यहाँ तक कि जो normal खाना होता है उसको भी उसने छोड़ दिया था खाना। सूप है, सैलड है, मे बी कि सुबह एक फ्रूट्स ले लिया, उसके बाद फिर सारा दिन कुछ नहीं खाया, तो ऐसे उसका चलता था। तो कभी कभी हमारा जो प्रोग्राम बनता था, लाइक हमारे जो ग्रुप में है सब लोग, तो हमारा प्रोग्राम बनता था कि चलो आज चाट फुल्की खाने जाते हैं, तो वो लेडी अलग सा मुंह बना के दूसरी तरफ खड़ी रहती है, मे बी कि कभी प्रिटेंड करती मेरे पेट में दर्द है, कभी बदहजमी का प्रिटेंड करती, या कभी कुछ करती, लेकिन वो नॉर्मल डाइट से भी हट जाती। और कभी कभी क्या होता है कि वो, जैसे कि हम लोग कुछ अच्छा बना के लाते, जहां हम अच्छे खाने के चटकारे लेते, तो वो अलग बैठ के अपनी सैलड खा रही होती। दिस ड्रास्टिक चेंज लेफ्ट हर फीलिंग डिप्राइव्ड एंड मिसरेबल. She would really miss out, indulging in sharing foods and all. We used to bring, we used to sit together, we used to taste the food, brought by the other ladies, so we used to sit together and we used to enjoy the food, different taste. And she would sit in a corner, just having her own salad and soup, And to combat with wrinkles, she started spending a lot of money on serum, cream, and expensive face mask, and then what happened, that started taking toll on her face too, because when you are using a lot of chemicals on your face, so your face doesn't remain the same, so a changes comes. And her skin become a kind of sensitive and very irritated for using those kind of chemicals, So it took a kind of worse turn, and she was so obsessed with her look, her appearance, She would constantly check on the mirror, She used to keep a small mirror in her handbag, and and always seeking validation from other people. मैं कैसे लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ? अगर किसी ने उसको बोल दिया कि आज तुम अच्छी लग रही हो, तो उसका दिन बन जाता था, कि people started taking her not very seriously, because they knew कि वो ऐसा करती है, तो लोग भी उसका मजाक उड़ाते, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, एकदम यंग लग रही हो। And what she would do, it would make her day, and she would look very pleased. Otherwise, always she remains in a kind of in a desperate mood, in a very not in a very good mood, always she looks sad, depressed, because your stress for looking beautiful, it also brings a lot of stress when you really want to go away from being beautiful and natural, and you want to adopt some other ways to look beautiful. So all these efforts took a toll on her body, and she started losing weight, very soon, because the strict diet or the exercise which she has been going through, so it put a kind of reverse effect on her body, and she started losing weight. And with the losing weight, her confidence level also decreased, because her face was not looking so good as she thought it to be, and her physical energy also started declining. And she actually felt she really started feeling the real
and she started missing the real joy of life. जिस प्रकार ऋतुएं एक के बाद एक आती हैं और जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य में भी परिवर्तन आते हैं। हम इस नियम को पलट नहीं सकते हैं। आजकल की महिलाएं जो 50-55 की हो रही हैं, वो चाहती हैं कि हम दिखने में 30 की उम्र की लगे, जो असंभव है। 30 की उम्र की कार्यक्षमता, शक्ति हमारे 50 की उम्र में नहीं रह सकती। प्रकृति का शाश्वत नियम है परिवर्तन, और हमें इस परिवर्तन से होकर ही जाना है। सभी को इस परिवर्तन से होकर गुजरना पड़ता है। जिस प्रकार 10 की उम्र के एक बालक या बालिका में जो चंचलता होगी, वो 25-30 की उम्र की युवक युवती में नहीं रहेगा। उसी प्रकार 25-30 की उम्र की लड़कियों में जो शक्ति होगी, वो हम 50-55 की महिलाओं में नहीं रह सकती। आप एक उदाहरण लीजिए, खिलाड़ी 40 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और वो रिटायर होने के पश्चात नई जेनरेशन को प्रशिक्षण देते हैं कि वो जाके मैदान में नई रिकॉर्ड्स कायम करें, क्योंकि वो जानते हैं कि इस उम्र के बाद हम मैदान में वो ताकत से हम अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। उसैन बोल्ट का नाम सभी ने सुना होगा, जो दुनिया के सबसे तेज धावकों में उनका नाम शुमार होता है। और उनका ये ध्येय था कि वो 3 बार ओलंपिक का उन्हें स्वर्ण पदक चाहिए दौड़ में, स्प्रिंटर्स जो 100 मीटर की दौड़ जो पूरी करते हैं। तो उनका आखिरी रिकॉर्ड था 9.90 सेकेंड 100 मीटर में। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इसके बाद उनकी ताकत मैदान में वो प्रदर्शन नहीं दिखा सकती है। उसी प्रकार हम महिलाओं को भी ये समझना चाहिए कि 50 की उम्र में हम सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें, जो हमारी त्वचा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। हर एक उम्र की एक सुंदरता होती है। 25-30 की उम्र में एक सुंदरता अल्हड़पन के साथ होती है, और 50 की उम्र में आके वही अल्हड़पन एक गांधीर्य में बदल जाती है। और हमारे पास जो ये 20-25 साल का अनुभव है, वो उन 30 की उम्र की लड़कियों के पास नहीं है। तो हमें चाहिए हम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि वो 30 की उम्र की बालाएं हमसे, हमारे अनुभव के माध्यम से इस दुनिया को जाने। बहुत ज़्यादा अपने फिजिकल लुक को लेके ऑब्सेस्ड हो जाते हो तो आपके मेंटल हेल्थ पर भी उतना ही असर पड़ता है। if you're very much obsessed with your look, it is you who has to suffer. No one can help you through this thing, to go through this thing, and it is you who has to grin and bear. You have to suffer all these things, because she wanted to wear the dresses, she wanted to fit into the dresses which she used to wear in the college, and she was so much obsessed with her look, her appearance, that her whole naturalness, it disappeared, and a kind of artificiality just crept into her personality. अगर हम चाहे तो क्या मेकअप करके 50 की उम्र को 20 कर दिखा सकते हैं या 30 कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, ये भी संभव नहीं है। जो एक
नेचुरल चेहरे की जो एक हमारी जो बनावट है वो कभी नहीं छिपती है ना। चाहे हम उस पर कितना भी लिपा पोती कर ले, लेकिन जो नेचुरल है उम्र का जो एक चेहरे पे जो आ जाता है वो कभी नहीं छिपता है। बल्कि हम अपनी कार्यशैली, अपनी दिनचर्या, अपनी लोगों के प्रति एक सम्मान, परोपकार की भावना और इन सब चीज़ों से हम अपने आप को उनके बराबर, उनसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी उम्र है वो हमारी ही रहेगी, और जो उनकी 30 की उम्र है वो 30 ही रहेगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपना ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ अपने परिवार, साथ ही साथ हमें समाज का भी ध्यान रखना चाहिए। और बल्कि हम अपने बिहेवियर से, अपनी एक्टिविटी से और अपने कार्य करने की क्षमता से और अपने अंदर के जो व्यक्तित्व है वो हमारी उम्र को बताएगा, ना कि हम उनके जैसा दिखे। ये मुझे कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। क्या हम उनके जैसा डाइट फॉलो कर सकते हैं या उनके जैसे वर्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें अपने उम्र का ध्यान रखते हुए हमें वर्कआउट करना चाहिए और अपने डाइट फॉलो करनी चाहिए। धन्यवाद। भाई देखिए, एक सर्टन एज तक आते आते आपकी जो आंखें वो कमजोर पड़ती है, आपकी हड्डियां कमजोर पड़ती है, लेकिन हम जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं हर औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे के सारे लेडीज की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी लेडीज है जो बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती है अपनी एज को और उसी प्रोसेस में चलती है कि हमें ब्यूटीफुल दिखना है। लेकिन जब ये एक ऑब्सेशन बन जाता है, जब एक सिनिकल थिंग बन जाती है, तब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और मैं मोस्टली उन लेडीज की बात कर रही हूँ जो एक्सेप्ट नहीं कर पाती और जो 55 की उम्र में 35 के लिखना चाहती है। Actually, these women, they actually want to reverse aging. They want to turn back the clock, in terms of their real age and their outward age and their real cellular age. As we know that science is helping women to look beautiful, but as we age, the functioning of our tissues, our cells, our organs, our muscles, it declines over the age, and diseases related to age, it occurs, it happens. And it's unfortunate on our part that in today's world women are more focused on their outward appearance, their outward beauty, and they are neglecting their internal beauties, their internal health issues. They're not taking much care of their internal things, their real things, how they should they look beautiful from inside. If we talk about the higher and upper classes ladies, those who are well settled in their life, so they get they inject Botox, they get mesotherapy, they do all types of modalities, to look good and beautiful. तो मेसोथेरेपी की अगर बात करें तो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कि विमेंस क्या करती है कि इसमें आपके बॉडी में करीब 100 के करीब जो है सुई चुभोया जाता है और जिसमें विटामिन इंजेक्ट किया जाता है, और वो 6-7 सेशन में, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है, 6-7 सेशन में 6-7 बार आपको 6-7 महीने के अंतराल आपको जो है अपने बॉडी में विटामिन जो है वो इंसर्ट करते हैं. And that's not only costly, but also there is a high risk of what you call a lot of diseases which comes afterward. And इसके साथ ही साथ जो है, ठीक है, वो आउटर अपीयरेंस को आपको सुंदर बना देते हैं, यंग बना देते हैं, आप यंग दिखने लगते हैं, लेकिन जो हमारी इनर सेल्यूलर एज है, हम उसके साथ क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू विद आवर इनर सेल्यूलर एज? आपकी डाइट, इसके साथ ही साथ आपकी डाइट है, आपकी एक्सरसाइज है, आपकी मेंटल पीस है, स्ट्रेस है, दैट इज ऑल्सो
वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेस, सुंदर दिखने का जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस के लिए जो स्ट्रेस होता है, दैट्स रियली वेरी स्ट्रेसफुल। क्योंकि सुंदर दिखने का जो स्ट्रेस है, उसके लिए जब आप स्ट्रेस लेते हो तो वो भी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। और आजकल तो प्योर और नेचुरल चीजों से अलग विमेन्स क्या करती है कि बहुत सारे ढेर सारे सप्लीमेंट्स ले लेती हैं, तो वो भी उनकी हेल्थ के लिए इट्स नॉट वेरी गुड, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। 50 की उम्र में महिलाओं का 20-30 का दिखना। आज गोष्ठी में इस विषय पर चर्चा हो रही थी। कई महिलाओं ने पक्ष विपक्ष में अपने विचार रखे थे, पर मुझे उनमें से एक शिक्षिका श्रीमती मोना गौड़ के विचार बहुत ही सुलझे हुए और सत्य पर आधारित लगे। उन्होंने क्या कहा, ये मैं आप सबके साथ भी साझा करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति प्रत्येक महिला के जीवन में आती ही है जब वो एक उम्र पर पहुंचकर अपने आप को प्रत्येक दृष्टिकोण से उपेक्षित समझने लगती है। मोना जी के विचार शायद आप सबके जीवन में एक नई रोशनी बनकर आए और जीवन के इस पड़ाव में सहजतापूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखा दे। उन्होंने कहा कि देखिए, सारी महिलाएं एक जैसा नहीं सोचती हैं। आप सब एक बार सोच कर देखिए कि 50 से अधिक उम्र की महिलाएं अधिक परिपूर्ण होती हैं, क्योंकि उन्होंने एक लंबा जीवन व्यतीत करके जो अनुभव हासिल किया है वो उनके जीवन को समृद्ध बनाता है। 20-30 की उम्र तो अधिकतर दैहिक सुंदरता की पहचान मात्र है जो सभी को आकर्षित करती है, परंतु 50 की उम्र परिपक्वता की पहचान है। मानसिक, आध्यात्मिक, वैचारिक, भावात्मक तथा वैचारिकता की पहचान है। तो जरा सोचिए, जो भी स्त्री इतने सारे स्तरों पर एक संपूर्ण जीवन जी रही हो, वो क्यों अपने भूतकाल में जाना चाहेगी? माना प्रत्येक स्त्री में एक हल्की सी कसक अपने बीते रंग रूप को लेकर होना स्वाभाविक है, परंतु कोई भी परिपक्व स्त्री यदि भीतर बाहर एक जैसा जीवन जीती हो तो वापस वो कभी भी अपने 20वें दशक में जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो जीवन के सत्य से परिचित है और उसे वो अपने गरिमा में व्यवहार के साथ ही स्वीकारती है। वो जानती है कि जीवन भविष्य की ओर उन्मुख है, आगे बढ़ना ही जीवन है, तो फिर बढ़ती उम्र को स्वीकारने में कैसी झिझक? यदि मैं इस सत्य को नकारूंगी तो मेरा स्वयं का अस्तित्व मिथ्या मात्र रह जाएगा। इसीलिए समझिए, जरा ध्यान से सोचिए कि जीवन का एकमात्र आधार सत्य है, और जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। अर्थात सुंदरता हमारे यौवन या वृद्धावस्था में नहीं, अपितु हमारे मन से होती है। यदि मन सच्चा है तो सभी कुछ सत्यम शिवम सुंदरम है। आज की जो लेडीज है ओवर थिंकर्स, दे आर डीलिंग विद मैसिव कॉर्पोरेशन, दे आर डीलिंग विद लॉट्स ऑफ पीपल, बट they are not taking care of their health, because they think that if they they spend their time in taking care of their natural beauty, I mean to cure themselves by using natural process, by go through the natural process, they think it is a waste of time because they don't have time to spend on natural aspects of life. अगर हम स्लीप की बात करें, सोने की बात करें, तो आज की जो लेडीज, हम सिर्फ लेडीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो इतनी प्रोडक्टिव है कि उनको अगर 7 या 7-8 घंटे की नींद को जो है प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो 3 ही घंटे की नींद लेगी, क्योंकि उनके लिए उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट। और मुझे तो ये लगता है ना कि आपकी प्रोडक्टिविटी या आपकी मतलब आपके जो काम है वो आपको इतना बिजी कर देते हैं कि आप आउटर कॉस्मेटिक्स
या आउटर जितने भी मेकअप के थिंग्स हैं, या फिर आपके जो हाइपर साइंटिफिक जो वेज है उसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो नेचुरल चीजों से तो आप भाग ही रहे ना। पर मुझे तो ये लगता है कि अगर आप रियली सुंदर दिखना चाहते हैं अंदर से, तो आपको जो है नींद पूरी लेनी चाहिए और खाना अच्छा खाना चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं आज के हायर सोसाइटी की लेडीज जो है, जाके क्लब में, होटल में, रेस्टोरेंट में फास्ट फूड खा रही हैं, सप्लीमेंट्स ले रही हैं, ऊपर से वो मेडिटेशन के लिए भी टाइम निकाल रही है, एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकाल रही, साथ में बोटॉक्स भी करा रही, मेसोथेरेपी भी करवा रही। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो उनको जो है एक आर्टिफिशियल एंटिटी बना रहा है। उनकी जो नेचुरल चीजें खत्म होती जा रही है। आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाली लेडीज का क्या है, उनके बारे में जरा सोचिए। मे बी कि लेट नाइट पार्टीज होती है, कई जो उनके जॉब का हिस्सा भी होती है, तो वो लेट नाइट पार्टीज में स्लीप डिप्राइव्ड होती है, सुबह मेकअप पोत के वो चली जाती है, लेकिन उनकी जो असली ब्यूटी है, एजिंग प्रोसेस, वो तो अपनी जगह चलती रहती, वो तो खत्म नहीं होती। तो सिंपल और सिंपल बनने का जो प्रोसेस है, नेचर से काफी दूर चली गए हैं वो लोग। उनके लिए जो है आर्टिफिशियल ब्यूटी ही सब कुछ है। तो यहाँ पे जो मैं ये डिस्कस करना चाहती थी वो ये कि ठीक है, इफ यू रियली वांट टू लुक ब्यूटीफुल, इट्स रियली एक्सेप्टेबल कि आप ब्यूटीफुल लगे, लेकिन आर्टिफिशियल वे में अगर आप ब्यूटीफुल लगना चाहते हैं और जस्ट एक उस प्रेशर को करने के लिए, मतलब जस्ट एक कॉम्पिटिटिव लेवल को पार करने के लिए, जब जस्ट दूसरों की तुलना में सुंदर दिखने के लिए, तो फिर ये जो है आपके साथ आप अच्छा नहीं कर रहे अपनी बॉडी के साथ। और सबसे बड़ी बात ये है कि विमेन अपनी बढ़ती हुई एज के हेल्थ इश्यूज को लेके या अपने प्रॉब्लम्स को लेके आगे बढ़ना नहीं चाहते, डिस्कस करना ही नहीं चाहती। मतलब दे ऑलवेज वांट टू लुक गुड, दे वांट टू लुक प्रेजेंटेबल, they are always filtered, you know. Maybe अब किटी पार्टी में सारे लोग बैठे हैं, they never come out with their problem, you know. घुटनों पे दर्द तो है ही नहीं, so everything is filtered, you know. They actually keep their efforts in private because they don't want people to judge them. They don't want to come out with their secrets, you know, how they are looking beautiful. They always say नहीं हम तो कुछ करते ही नहीं है, because they are very much concerned about their skin, their sagging skin and their face. They're losing what you call, they're putting on a lot of weight, they're losing a lot of glow of their face, you know. Everything seems going south, but they are very much concerned about it, so they don't want to discuss it with other people. देखिए, एक और पहलू है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ कि जब हम अराउंड 50 तक पहुँचते हैं तो हमको लगता है कि अब हम लाइफ अपने टर्म पर जिएंगे, हमें नहीं फर्क पड़ रहा है कि व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट अस, हमारे बारे में लोग क्या कर रहे हैं। मेरी लाइफ है, अगर मैं खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, अगर मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, अगर मैं कुछ भी करा रही हूँ, तो मेरी अपनी खुद की चॉइस है। तो यहाँ पे बात ये उठती है कि इट्स रियली रियली गुड and acceptable that you are adopting the natural way of becoming beautiful, taking care of your inner health, of your cellular body. लेकिन जब आप इन सब चीजों के से परे हट के सिर्फ एक सनक या एक ऑब्सेशन लेके जीते हैं, you're not caring for your age, you are not caring for your cellular age, you are doing a lot of अपने बॉडी पर आप ढेर सारे अत्याचार कर रहे हैं, तो फिर ये एक वर्स टर्न ले सकता है। औरतें अपनी जो रियल एज को क्यों छिपाना चाहती है, मुद्दा तो हमारा मेन यही है डिस्कशन का। तो यहाँ पर जो हमारे सोसाइटी का जो एक दबाव होता है, यानी सुंदर दिखने का दबाव, क्योंकि हमारे मीडिया है, हमारे एडवर्टीजमेंट है, हमारे सोशल नॉर्म्स है, वो सुंदरता पर या यंगनेस पर ज्यादा प्रेशर डालते हैं। एंड दे पोर्ट्रे यूथफुल अपीयरेंसेस एज डिजायरेबल एंड अट्रैक्टिव, क्योंकि युवा दिखना आत्मसम्मान और आत्म संवेदन को बढ़ावा देता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे समाज में युवा लोगों को ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा लोगों का होता है इन कंपैरिजन टू एज्ड पीपल, यू नो।
अब अगर कहीं जॉब पे भी आप जाएंगे, आप देखेंगे वहां पे आपके एक्सपीरियंसेस को ज्यादा नहीं देखा जाता, बल्कि सुंदर, स्मार्ट, यंग होना जरूरी है। तो हम उस पिक्चर में फिट बैठना चाहते हैं, और दिस इज द रीजन कि हम जो है आज इस अंधे दौड़ में भागते जा रहे हैं, अपने रियल एज को नकार रहे हैं और इसके पीछे भाग रहे हैं। लुकिंग ब्यूटिफुल इज आवर राइट, but we should not take unnecessary stress for looking beautiful. Just try to pursue your interest, try to mingle up with people, try to fulfill yourself, just instead of getting into this zone of artificiality, try to be natural. And aging की अगर हम बात करें तो aging एक natural process है. We should remember that aging is a natural and inevitable process of life, and everyone has to go through it. And if we embrace our age, we are actually accepting ourselves as we are. So उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं चाहती हूँ अपने विचारों को आप जो है प्रेजेंट करें कि यहाँ पे जो मैंने आज के डिस्कशन को लिया है कि 50-55 की औरतें क्यों दिखना चाहती हैं यंग, और अगर वो दिखना चाहती है यंग तो ये सही है, लेकिन बैड तरीकों से नहीं, खराब तरीकों को अपनाकर नहीं, बल्कि नेचुरल प्रोसेस से सुंदर दिखना ये स्वीकार्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।